Hello, good afternoon. This is Ehsan Chishti from AMP, Association of Muslim Professionals. A very warm welcome to all of you. So today's session is the employability training program, which is being conducted by our guest speaker for today, Mr. Hassan Latifi. In the beginning, I would be starting with a short prayer. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Good afternoon, everyone. I would now be presenting you a short presentation about Association of Muslim Professionals. Association of Muslim Professionals, or AMP, is a non-profit organization. Our activities which we undergo is to promote employment and knowledge in our society. These are few of our flagship projects which we run. So most of the programs which we do are skill development lectures into schools. We conduct AM job fairs, which we do all across India. We also do job drives. We conduct employability training programs, which we are doing right now. So in the employment assistance cell, we have a few projects which we do: job fairs, job drives, employability training programs, skill training programs. So job fairs, basically AMP invites minimum 50 companies, and we have 2000 plus candidates participating in every job fair. Till now we have done 42 plus on ground job fairs and more than 8 online job fairs, which is during this pandemic. In the past, we have collaborated with the government organizations like Thane Police, Aurangabad Police, West Bengal Minority Finance Development Corporation, Andhra Pradesh State Minorities Finance Corporation, and other reputed NGOs. To give you an example of the companies that participate in our job fairs, we have TCS, we have Asian Paints, we have Reliance Group, Cafe Coffee Day, McDonald's, Tea Please, Tech Mahindra, and other reputed corporations. So these are the few snapshots or pictures of our past on-ground job fairs. And job drives, as I've told you, we do it in the rural areas, we do it in tier 2, tier 3 cities. And in job drive, we invite around 2 to 3 corporates. These are a few pictures of the job drives which we have done in the past. Employability training programs. So employability training programs we undergo in most of the colleges all across India. So right now, due to the pandemic, we are doing it online. So we have trainers who are seasoned professionals who have in-depth understanding of employability training and are committed to investing their valuable time, resources, and knowledge in grooming the candidates. So we team up with colleges in different cities for conducting such programs. These are a few pictures of the college ETPs which we have done in the past. We also tie up with the training institutes. Achievements till now, we have done 42 plus job fairs, which on ground job fairs, 8 online job fairs, 270 plus job drives, 2 online job drives, and right now we are also having an online job fair, which is an engineers day online job fair, which was running since yesterday 15th and today 16th September. So this is basically for the engineers who are looking out for jobs. They can visit our website and they can participate in the online job fair. So till now we have, alhamdulillah, able to be placed 20,000 plus candidates. New initiatives by AMP. AMP has recently launched indiazakat.com and theindiamentors.com. So indiazakat.com is India's first crowdfunding platform
floated by the Association of Muslim Professionals with a view to bring the zakat seekers and zakat givers on a unified platform. Its objective is to undertake its operations purely with the intent of bringing socio-economic transformation in the lives of the people without seeking to generate any commercial. The IndiaMentors.com strives for the development of a vibrant and progressive student community in India. To achieve this, AFP tries to reach out to every needy student of India through the medium of education, career guidance, and employment assistance. The IndiaMentors.com envisions a fully educated and empowered student community where no one is left out of the wheels of progress and development due to lack of awareness and guidance. So, if any of the students or candidates who has joined today wants to know more about AMP, they can visit our website, which is www.ampindia.org. Thank you, everyone. I would now give you a brief description of our speaker today, who is Mr. Hassan Latifi. Mr. Hassan Latifi, with 40 plus years of experience in corporate world, he is a global leader who has worked and traveled to more than 20 countries. Under his leadership as country head and marketing head, he has helped various IT services and consulting firms to define their corporate social responsibilities, focus on education, environment, and wellness. He has been associated with Gulf Bureau for Research and Economic Consultations, Riyadh, for 20 years, working alongside bureaucrats as a sole Indian representative for Saudi Business Setup Advisory Consultant. Beyond office, he is highly tech savvy and is always keen to learning new technologies and network with millennials and mentoring Gen Y and millennials. A warm welcome to Mr. Hassan Latifi, sir, for today's employability training program. I would now request you to please carry on the session from here on. Thank you. Thank you, Hassan. Thank you for that introduction. And uh, I really appreciate that. Uh, a warm good afternoon to all the participants who are there. I'm sure all of you are uh, okay. I think it is all participants, all hosts. Right. So I'm a little, yes. Now, is my screen okay with you all? Uh, Yes, sir. yeah. So the the topic today is interview and technique, the skills that you have to know, and what is the technique, how you really go about getting the interview cracked. How do you, you know, get to the part of getting a job? So basically, when I talk about an interview, you just don't get an interview unless you don't qualify for an interview. Now, what qualifies you for an interview is your resume, which you prepare. So the first important part in any job interview is your resume. Many people don't understand the value of a resume. Most people who come to me uh, normally bring a resume which is made by a cyber cafe, which is a standard 20-year-old format, which has the same, all the mistakes, all the spelling mistakes, grammatical mistakes, many other things. So please, whenever you are creating a resume, today we have a lot of online websites where you can really check your resume, where you can create your resume. They are free. You don't have to pay for it. The only thing is that you need to look for them. If you are with AMP job groups on Telegram, I keep sharing these informations on that group. So maybe if you look at that, you will get those, websites which help you into creating a new resume or a proper resume. Resume should always reflect the job that you're looking for. You're looking for a
accountant job and you send a resume of a sales, a sales guy or something, it doesn't make sense. So please be careful when you're sending your resume. It should match the job, even your cover letter. You should always make it as per the need of the job. Do not just send a standard cover letter and a standard resume. Always review your resume, review your letters, cover letters, before you even send it. Or take some guidance. Take some guidance from some people who are ready to help you. We at what we say AMP also do help people into reviewing their resumes and guiding them. So please do ask for help. This is the time when you have to really look for help. Get as much as possible help that you can. So once you have created a good resume, a proper resume, then you are you can hope that the resume will attract the employer to call you for an interview. You have to understand that when you are applying for a job, it's just not you, one person who is going in for a job. There are thousands of people, maybe hundreds of people. So how can you expect? Some people make 4 or 5 pages resume, just make a lengthy resume with nothing in it. Please look at the sample resumes, look at the way resume should be made. Take guidance in resume. Resume is the founding stone. It's like the seed. जब तुम जॉब के लिए जा रहे हो तो ये सोच लो कि बुनियाद जो है वो रेज्यूमी है. अगर अपने रेज्यूमी की बुनियाद ही नहीं सही किए तो तुम्हारे को हर टाइम पे वही होगा कि मैं रेज्यूमी भेजता हूं लेकिन अप्रूव नहीं होता है, मेरे को जॉब कॉल नहीं आते. मुझे हर वक्त यही सुनाई देता है कि सर हम रेज्यूमी भेजते हैं लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता है. तो जब मैं उनसे बोलता हूँ भाई तुम्हारा रेज्यूमी रिव्यू कराओ, तो यही होता है कि उसके रेज्यूमी में मिस्टेक्स होते हैं या तो उसका रेज्यूमी कुछ बराबर नहीं रहता है. इसलिए आपको अगर आपके जॉब को वाकई में सीरियसली ढूंढना है तो सबसे पहले अपनी रेज्यूमी को ठीक कराओ. वो सबसे पहले बुनियाद है. तो नेक्स्ट कैन आई आस्क Ehsan to do the next, or have I to do it? Hello, Ehsan. It will be done from your end, sir, because the PPT you are running. Okay. Got it. Okay. So, abhi now there are different types of interviews. Today's, when now we are in this coronavirus atmosphere, normally the resumes are video or Skype resumes. Otherwise, we used to have one-to-one and other type of resumes. But in this period, when you are having video and Skype interviews, you have to be more sure that everything that you are having to be ready with for an interview of Skype and video is correct. Especially your, network connection, your background. It should not be a disturbing background. People should not be walking behind you. Children should not be playing. There should not be noise. ये सब चीजें बहुत जरूरी है, especially वीडियो इंटरव्यूज में. अगर आप डिस्टर्बेंस रखोगे तो आदमी जो इंटरव्यू ले रहा है वो इरिटेट होगा, और जैसा ही वो इरिटेट होगा वो आपको रिजेक्ट करेगा. देखिए, इंटरव्यू सिर्फ एक स्टेट ऑफ माइंड है. उसमें आप काम नहीं कर रहे हो, उसमें अपनी कैपेबिलिटी नहीं बता रहे हो. आप सिर्फ उसे जो है कन्विंस करने की कोशिश करो कि आप दूसरे आदमी से बेटर हो. तो उसके लिए आपको हर एक वो चीज को तैयार करना पड़ेगा या इस तरह से करना पड़ेगा कि सामने वाला डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, जिससे वो तुम्हारे इरिटेट ना हो. इसके लिए जब आप वीडियो इंटरव्यू देते हो, स्काइप इंटरव्यू देते हो, प्लीज कोई अलग रूम से या अलग जगह पे, कुछ लोगों के पास नहीं होता है ऐसे फैसिलिटीज, तो कम से कम घर वालों को रिक्वेस्ट करो कि मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, उस वक्त के लिए थोड़ा चुप रहे, आवाज ना करे, इस तरीके से. और हो सकता है तो कोशिश करिए कि एक फ्लैट बैकग्राउंड या एक वॉल को पीछे रखते हुए आप इंटरव्यू दे. डिस्टर्बेंस वाली इंटरव्यू ना दे. हो सकता है आप प्लेन बैकग्राउंड को चूज करें. ओके, तो हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर एन इंटरव्यू? इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कैसे किया जाता है? तो नॉर्मली अब जब भी मैं लोगों से पूछता हूं कि भाई तुम्हारा इंटरव्यू है, तुमने कोई प्रिपरेशन किया, तो कहते सर मैं प्रिपेयर्ड हूं, मैंने अपना रेज्यूमे सब ये कर दिया है
और ये सब चीजें रेडी है मेरी, प्रिपरेशन वो नहीं होता है। दैट इज नॉट द प्रिपरेशन, वो हम नहीं पूछ रहे। यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंपनी दैट यू आर गोइंग फॉर। आप किस कंपनी के लिए अप्लाई किए हो, कौन सा जॉब है, क्या आपका जॉब प्रोफाइल है, क्या आप उसके उसके स्किल्स में आपने क्या क्या पाया है और क्या क्या आप कर सकते हो। ये सब चीजों को आपने स्टडी करना है, ये सब चीज को आपने रिसर्च करना है। सबसे पहले तो जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, अगर आपको कंपनी का नाम पता है, अगर आप जानते हो किस कंपनी के लिए, तो उस कंपनी के बारे में रिसर्च करिए, उस कंपनी के बारे में जानिए कि वो क्या कंपनी है, क्या चीज में डील करती है और किस चीज के लिए उनका मतलब मेन ऑब्जेक्टिव है। तो इस तरीके से जब आप कंपनी के बारे में रिसर्च करते हो तो आपको एक नॉलेज होती है कि वो कौन सी कंपनी है, किस कंपनी के लिए आप काम करने जा रहे हैं। दूसरा होता है कि जैसे अभी मोस्टली अभी इंटरव्यू के लिए आपको जो इंटरव्यूअर होता है उसका नाम पता होता है, नाम बोला जाता है कि यू विल बी इंटरव्यूड बाय मिस्टर सो एंड सो। तो जैसे अगर आपको कहा गया कि आप यू विल बी इंटरव्यूड बाय मिस्टर हसन लतीफी, तो आप लिंक्डइन पे जाके हसन लतीफी चेक करने की कोशिश कर सकते हो, ताकि तुम्हारे को थोड़ा बहुत हसन लतीफी के बारे में जानकारी बन जाए, थोड़ा उनका प्रोफाइल समझ में आए कि वो कैसा किस्म का इंसान है, वो कितना मतलब नॉलेज रखा है या मतलब वो ये क्या हुआ है। उससे आपको अंदाजा होता है कि आप किस बात करने वाले। तो कंपनी एंड द इंटरव्यूअर may not know the interviewer, but he will know the company. उन्हीं चीजों का नहीं पता होता है, then try to understand the field that the company is working in. When you are looking for job, so hello, am I clear? Please, my internet connection is showing. Yes, sir. Is my internet It was is having a fluctuating. problem? Now is it okay? It's little better. Hello, is it okay now? Okay, because I don't know why. One second, please. Okay, so now it is clear. Hello, is it clear now? It's 50%. 50% it is clear. So it's audible. So next thing is to ask further advice. If you are being recruited by somebody, ask them about the company, about what is the kind of job profile, some sort of information try to get out from the recruiter. And if you cannot do that, try to ask from your friends or your mentors or somebody who can guide you. इस तरीके से अपने आप को गाइड कराइए। देखिए, मेरे ख्याल से अभी जो भी लोगों से मैं बात कर रहा हूं, नॉर्मली ये सब जो है कॉलेज स्टूडेंट्स हैं और आप अभी फर्स्ट टाइम जाने वाले हो जॉब ढूंढने के लिए। तो आपको जब आप मतलब कॉलेज से निकल के जब आप दुनिया में आ रहे हो एक्चुअल जॉब के लिए, उस वक्त आपको जितनी गाइडेंस हो सकती है वो लेने की कोशिश करना चाहिए। जितना हो सकता है कोई मेंटोर या कोई ऐसे शख्स से हेल्प लेनी चाहिए जो आपको सही रास्ता गाइड कर सके। और इसके अंदर एएमपी बहुत बड़ा काम कर रही है, जिसमें आप लोगों को मेंटोरिंग या हेल्प या गाइडेंस दे रही है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप गाइडेंस लो और अपने आप को जो है प्रिपेयर करो। यहाँ नेक्स्ट ये होता है कि बी ऑन टाइम। अब बी ऑन टाइम का मतलब ये होता है कि मेरे करियर में मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो जिनको 1 बजे अगर बुलाया जाता है तो वो 2 बजे आते हैं या 2:30 आते हैं और फिर बोलते हैं सर ट्रैफिक बहुत थी एंड वगैरह वगैरह। दिस इज द मोस्ट इरिटेटिंग और स्टूपिड एक्सक्यूज जो हम समझते हैं। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे को कहीं जाना है तो पहले टाइम कैलकुलेट कीजिए, पूरी तरह से टाइम कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आज की तारीख में हर एक जगह जाने का एक टाइम कैलकुलेशन हो सकता है कि आपको पता होता है कि यहाँ से यहाँ जाने के लिए 2 घंटा लगेगा,
या 1 घंटा लगेगा, तो इस हिसाब से एक बफर टाइम रखिए, आधा घंटा एक बफर टाइम रखिए। अगर आपको 1 बजे बुलाया गया है तो आप 12:30 बजे पहुंचने की कोशिश कीजिए, वो आपका टाइम लिमिट होना चाहिए। नहीं कि 1 बजे डायरेक्ट आप पहुंच के वहां पे ये। उसकी वजह ये है कि वेन यू, अगर आप वहां पे पहुंचते हो 1 बजे, तो इंडिया की क्लाइमेट के हिसाब से आप मोस्ट लाइकली स्वेट कर रहे होगे, पसीने में होगे, और आपका मतलब जो है हुलिया बराबर नहीं रहेगा। और उसके बाद आप डायरेक्टली अगर इंटरव्यू में जाते हो तो एक तो आप अनसेटल्ड हो, क्योंकि इतनी टाइम से आप ट्रैवल करके, तो उसकी वजह से अगर बेटर है कि अगर आप आधे घंटे पहले आते हो, वहां पे जाके बैठते हो, थोड़ा फ्रेश हो जाते हो, फ्रेशन अप करते हो, तो आप रिलैक्स होके जाते हो। देखिए, इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को रिलैक्स्ड रखिए। जब तक का आप रिलैक्स नहीं होगे, आप कंफ्यूज रहोगे और आप टेंशन में रहोगे। तो इसीलिए ये सोचिए कि आप जल्दी जाओगे तो आपके लिए वो बेटर है। जल्दी मेरा मतलब ये नहीं कि तो हम 1 बजे बुलाया तो 12 बजे पहुंच जाओ, लेकिन कम से कम आधा घंटे पहले पहुंचने की कोशिश करिए। दैट इज द बेयर मिनिमम। उसमें सामने वाले इंटरव्यूअर को भी एक ये होता है कि हाँ, ये बंदा एंथुजियास्टिक है जॉब के लिए। जो लेट आते हैं, हमारे को ऐसा लगता है कि ये तो, इसको तो परवाह नहीं है, तो इसको रखना ही क्यों। सिंपल सी बात है, अगर आपको मेरी टाइम की कदर नहीं है तो मैं आपकी टाइम की क्यों कदर करूं? वाई विल आई केयर फॉर यू? मैं आपके लिए पूछूंगा ही क्यों? मैं आपको डायरेक्टली रिजेक्ट भी करूंगा, चाहे आप दूर से आए हो, अनलेस यू हैव अ जेन्युइन रीजन। समझ सकते हैं? अगर जेन्युइन रीजन है, हर कोई समझता है, इंटरव्यू भी समझता है, जेन्युइन रीजन होगा तो। बट अगर ये जैसे नॉर्मल एक्सक्यूज रहता है, सर ट्रैफिक बहुत थी, हम लेट हो गए, ट्रैफिक बहुत थी तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? वेल, सो प्लीज, अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आप कोशिश कीजिए कि हमेशा बफर टाइम रख के चलिए। कम से कम आधा से पौने घंटे का बफर टाइम रखें, क्योंकि कभी ट्रैफिक ज्यादा हो सकती है जिसकी वजह से आप लेट हो सकते हो, तो वो एक्सक्यूज आपके लिए नहीं होगा। ओके, तो नेक्स्ट है ड्रेस फॉर द ओकेजन। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। अक्सर मैं पाया हूं, लोग जीन्स में चले आते हैं, टी शर्ट पहन के चले आते हैं। भाई, ये कॉलेज नहीं है कि आप जीन्स में चले आ रहे हो या कॉलेज में टी शर्ट पहन चले आ रहे हो। और फिर वो कुछ लोगों ने वो क्या बोलते हैं, हाथ में कुछ पहना हुआ है, गले में कुछ पहना हुआ है, नाक में कुछ पहना है। भाई, ये समझने की कोशिश कीजिए, जो इंटरव्यू है वो पुराने ख्यालात का है, वो आपके नए जनरेशन के ख्यालात का नहीं है। इसीलिए उसे वो चीजें पसंद नहीं आएगी। नॉर्मल जाइए। मैं नहीं कह रहा हूं कि सूट टाई पहन के जाइए, लेकिन अगर आप मैनेजर के पोस्ट के लिए जा रहे हो तो हाँ, जरूर सूट टाई पहन के जाना है। बट अगर आप एज अ ट्रेनी, एज एन फ्रेशर जा रहे हो, तो डिसेंट, कम से कम फॉर्मल ड्रेस पहनिए। स्लीपर्स नहीं, शूज पहनिए, पैंट पहनिए, जीन्स नहीं, शर्ट पहनिए, टी शर्ट नहीं। ओके, प्लान अहेड। हमेशा इंटरव्यू में आप लोग समझते हो कि इंटरव्यू ही क्वेश्चन लेना चाहिए, इंटरव्यू ही पूछना चाहिए सब कुछ। ऐसा नहीं है, आपने भी पूछना है। यू ऑल्सो हैव टू आस्क इन द इंटरव्यू सम क्वेश्चन, समथिंग दैट विल मेक इट clear that you are interested and you have done some work, you have done some research. I will go on to that, what you have to ask, but then you have to prepare. You have to make some questions before to ask the interviewer when you are being interviewed. So it is a good this. जैसा मैंने पहले भी कहा, मिनिमम डिस्ट्रैक्शन। लोग इंटरव्यूज में जाते हैं और फोन को साइलेंट नहीं रखते। ऑनलाइन भी अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो, आप पहले देखिए कि आपका फोन साइलेंट पे हो या आपके घर वालों का फोन साइलेंट पे हो, और टीवी जो है बंद हो। ये सब चीजों को पहले ध्यान दीजिए, क्योंकि जितना डिस्ट्रैक्शन होगा इतना इरिटेट हो जाएगा इंटरव्यूअर, इतना वो जल्दी तुम्हारे को रिजेक्ट करने के चांसेस है। आप ये सोचिए कि इंटरव्यूअर जो है आपकी जॉब नहीं देख रहा है, आपका सिर्फ कैरेक्टर देख रहा है और आपका फ्लो देख रहा है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल देख रहा है। तो इसीलिए ये सब चीज के लिए आपको डिस्ट्रैक्शन जो है मिनिमम करने की कोशिश कीजिए। आपका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
इसीलिए मैंने कहा ना कि ड्रेस करना, अपने आप को प्रेजेंटेबल दिखाना, ये सब बहुत जरूरी होता है। अगर फेस टू फेस इंटरव्यू है तो अगर आप दूर से आए हो तो पहले वॉशरूम जाइए, अपने आप को फ्रेशन कीजिए, अपने आप को वॉश करके फिर जाइए इंटरव्यू के लिए। नहीं कि आप स्वेट होते हुए जा रहे हो, आप पसीने में हो और जा रहे हो और सामने वाले के साथ बात करने की कोशिश कर रहे हो। इट इज अ नो गो। ओके, जैसा मैंने अभी कहा कि ड्रेस करने की कोशिश कीजिए। ड्रेस में जो है फॉर्मल ड्रेस, सूट जरूरी नहीं है, बट अगर आप हायर पोजीशन पे जा रहे हो तो सूट कंपलसरी होता है। अगर आप मतलब नॉर्मल जैसे पोजीशन के लिए जा रहे हो तो फॉर्मल्स पहनना जरूरी होता है। एंड औरतों के लिए भी साड़ी या शलवार कमीज पहनना जरूरी है। फिर अगेन कोई टैटूज और ये सब जो है, कोशिश करिए कि जितना विजिबल टैटूज नहीं है उसको दिखाओ मत। ज्वेलरी भी मिनिमम होए। हेयर कट जो है एक नॉर्मल हेयर कट रखिए, और स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स अवॉइड कीजिए, वगैरह वगैरह। अब एक और चीज जो है, अगर आप फेस टू फेस इंटरव्यू कर रहे हो तो उसमें एक हैंडशेक और स्माइल और आई कांटेक्ट, ये बहुत जरूरी चीजें है। इवन ऑनलाइन में आपको आई कांटेक्ट कोशिश करिए हर टाइम पे मेंटेन करने की। यानी आपको ये देखना है कि आपको स्क्रीन देखना है, आपको लोगों को देखना है, सामने वाले को आंख, फेस टू फेस। हर टाइम पे कोशिश कीजिए कि आपका जो फेस है वो उसको देखता रहे, उसकी आपकी आई कांटेक्ट उससे बनी रहे। This is a very important part in an interview. This shows your confidence and this shows your, your zest in yourself. ये मतलब आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर एक ये है कि आप कुछ मतलब कर सकते हो, ये बताने की कोशिश करता है जब आप सामने वाले से बात करते हो। तो इसको आप प्लीज हमेशा कॉन्फिडेंटली बात कीजिए। अगर हैंडशेक करना है तो बहुत सारे लोग जो है खाली एक लेम ऐसा करके करते हैं, ऐसा कभी नहीं कीजिए। प्रॉपर हैंडशेक कीजिए जिसमें हाथ बराबर से मिलाने की कोशिश कीजिए। अगर आप स्वेटी हैंड्स रखते हो, बहुत सारे लोगों के हाथ स्वेटी होते हैं, तो कोशिश कीजिए हैंडशेक से पहले अपने हाथ जरा अपने पैंट को पोंछ के फिर हाथ मिलाइए। किसी को भी स्वेटी हाथ, गीले हाथ पसंद नहीं आते। अगर आप किसी के साथ गीले हाथ से शेक करने जा रहे हो, इट इज एन इरिटेशन। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो मेरे जैसे इंसान को एक फर्स्ट ही टाइम पे मेरे को ये होगा कि ये इंसान जो है गंदा इंसान है, इससे मेरे को बात भी नहीं करना। तो इंटरव्यू तो दूर की बात होती है। तो प्लीज अंडरस्टैंड, ये एक इंटरव्यू के लिए एक इरिटेशन होता है। बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके इंटरव्यू में। अगर आप बॉडी लैंग्वेज मेंटेन करते हो, बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, आप बोलते तो हो लेकिन आपकी बॉडी आपकी एक दूसरी चीज शो करती है। यू डू नॉट show the same enthusiasm in your body while you are talking. That only means to say that you are not confident enough. मतलब अगर आप हंस रहे हो और खाली कैसे मतलब स्माइल दे रहे हो, तो आदमी सोचेगा कि ये मतलब मुझे हंस रहा है, मुझ पे हंस रहा है या मेरे को हंस रहा है, यानी he will not be sure. So whenever you are doing a body language, be very sure that you are 100% into it. For instance, if you lack eye contact, जैसा मैंने कहा कि अगर आप सामने वाले को देखते नहीं हो, आई कांटेक्ट नहीं मेंटेन करते हो, तो वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक बनती है। अगर आप बैठे बैठे बहुत हिल रहे हो, ढूल रहे हो, इधर हाथ लगा रहे हो, तो जैसा मैंने बताया आपको पहले भी कि इट इज नॉट समथिंग which goes well with the interviewer. And at the same time smile karna. When you are talking to a person, try to keep a steady smile. मतलब ये नहीं कि आप उसको हंसते ही रहो, लेकिन मतलब बेवकूफ नहीं बनना है। बट जब भी उसे अगर वो कुछ कहता है तो यस सर आई कैन डू इट, मतलब उसे एक स्माइल दे के रिप्लाई करने की कोशिश करो। बहुत सारे टाइम पे इंटरव्यू के टाइम पे अगर हम कैंडिडेट्स को क्रॉस क्वेश्चन करते हैं तो वो
एक किस्म का मतलब मतलब गुस्सा दिखाने की कोशिश करते हैं, या उनका मतलब जो चेहरे का जो एक्सप्रेशन वो चेंज होता है, ऐसा मत कीजिएगा। कभी भी अपने एक्सप्रेशन को गुस्सा या इसमें मत कीजिए, हमेशा उसमें एक स्माइल। तो जिसमें मेरे स्क्रीन में आपको दिख रहा है, आप डूज एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए इंटरव्यू में, क्या करना सही है, क्या नहीं करना चाहिए। कैरी बहुत सारे आइटम्स मत लेके जाइए। नॉर्मली मैंने देखा है कि फर्स्ट इंटरव्यू में ही लोग पूरे अपने सर्टिफिकेट्स ले आ जाते हैं, पूरे सारे कुछ ले आ जाते हैं। जब तक का आपको पूछा नहीं गया हो, प्लीज कोई सर्टिफिकेट मत ले जाइए। इट इज रिडिकुलस। आप सर्टिफिकेट पे बेसिस पे आपकी इंटरव्यू नहीं हो रही है। आपका सर्टिफिकेट तब देखा जाएगा जब आपको सेलेक्ट किया जाएगा। आपके सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड में आपको बोला जाएगा कि सर्टिफिकेट्स को प्रोड्यूस कीजिए। उससे उससे पहले सर्टिफिकेट्स लेके जाने का कोई मतलब नहीं होता है। व्हाई डू यू कैरी सर्टिफिकेट्स, व्हाई डू यू कैरी दोज थिंग्स? तो प्लीज, अगर आपको इंटरव्यू में बोला गया है कि सर्टिफिकेट्स लाने के लिए, then only carry your certificate. Otherwise, there's no sense in carrying certificate. Just take your copy of a resume and go as much as possible with less items. Especially women carry a lot of baggage. You know, उसके अंदर बहुत सारी items होती है, वो निकालते रहते हैं। तो वो प्लीज मत कीजिए। अगर लेडीज अगर है ऑनलाइन सुन रहे हैं, तो प्लीज उनको ये सिंसियर एडवाइस है, डू नॉट कैरी अ लॉट ऑफ आइटम्स इन योर बैग। दैट मीन आपका नॉर्मल रूटीन होगा वो, बट इंटरव्यू के टाइम पे उसको स्किप कीजिए। शूज पहनना जरूरी है। जैसे मैंने पहले भी कहा, शूज नहीं होता है तो उसमें जो है एक लेथार्जी और मतलब एक बैड फीलिंग क्रिएट करते हैं। सिट स्लाइटली एंगल्ड का मतलब होता है कि जब आप बात कर रहे हो तो थोड़ा एक टिल्ट करके बैठने की कोशिश कीजिए, ताकि आप इंटरव्यू को बराबर से देख सके और उसको एक अपनी बॉडी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर सके। और हमेशा हर टाइम पे कॉन्फिडेंस जो है अपने बॉडी लैंग्वेज में शो करने की कोशिश। उसी तरह से नर्वसली स्माइल मत करो, और फिर जैसे कुछ लोग होते हैं अपने ओंठ चबाते हैं या हर वक्त अपने मतलब मुंह को हाथ लगाने की कोशिश करते हैं। ये सब चीजें जो है इंटरव्यू के टाइम पे एक अच्छी साइन के मतलब इससे ये जाहिर होता है कि आप नर्वस हो, आप जो है कॉन्फिडेंट नहीं है। आपने ये सोचना है कि अब यहाँ पे इंटरव्यू में ये एक कॉमन क्वेश्चन है जो आता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। अब यहाँ पे ऐसा होता है कि इट्स द मोस्ट फनी पार्ट कि मैंने जब देखा है लोग हमेशा जो है, सर आई एम मिस्टर सो एंड सो, माय फादर इज सो एंड सो और वगैरह वगैरह, आई हैव डन माय बीकॉम। भाई आपका रेज्यूमे ऑलरेडी है इंटरव्यू के पास, वी ऑलरेडी नो यू आर मिस्टर सो एंड सो, यू हैव डन सो एंड सो वगैरह, हम सब जानते हैं। तो फिर हम आपसे ये क्यों पूछ रहे हैं? आपने ये सवाल पूछोगे कि सर आप सब जानते हो तो फिर क्यों पूछ रहे हो? हम आपके बारे में एक राय जानना चाहते हैं। व्हाट, आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आपने मतलब पास्ट में क्या किया है, आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हो, और आप फ्यूचर आपका कैसा देखते हो, ये हम जानना चाहते हैं। हम आपके जो रेज्यूमे में नहीं है वो जानने की कोशिश करते हैं। इसीलिए उसमें आप जो है कोशिश करिए कि आप इसमें बहुत सारे वेबसाइट्स है जिसमें आपको इस चीज के जवाब और एग्जाम्पल्स और टेस्ट दिए जाते हैं, जिसमें आप ट्राई कर सकते हो और मतलब इसको यूट्यूब में जाके आप सर्च कर सकते हो और इसमें सीख सकते हो कि किस तरह से इस चीजों का जवाब दिया जा सके। जैसा टेल मी अबाउट योरसेल्फ, गिव मी एन आइडिया अबाउट योर स्ट्रेंथ, और ये सब ऐसे सवाल जो है ये कॉमन सवाल है। चाहे उसमें तुम ये समझ लीजिए कि ये जो है 99.9% लोग ये है सवाल पूछते ही है हर इंटरव्यू में। तो इसके लिए रेडी होना चाहिए आप। देखिए हर टाइम मैं जब ये रेडी होने की बात करता हूं तो एक बात समझने की कोशिश की, इंटरव्यू इज नथिंग लेस देन एन एग्जाम। आप ये सोचिए कि इंटरव्यू जो है एक एग्जामिनेशन है। अगर आप उसमें मतलब जिस तरह से एग्जाम में अगर आप फेल होते हो तो उसके मतलब ये नहीं है कि दुनिया खत्म हो जाती है। उसका मतलब ये होता है कि आप जो है एक
और चांस ट्राई कर सकते हो, एक और अपॉर्चुनिटी ट्राई कर सकते हो। तो और हाँ, बल्कि आपने ये सोचना चाहिए कि हर इंटरव्यू आपके लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस बनना चाहिए, क्योंकि अभी आपको जो है वर्ल्ड में, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या बिजनेस वर्ल्ड में आके आपको सीखना है। तो इंटरव्यू जो है उसकी शुरुआत है कि आपको जानने की कोशिश करना चाहिए कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे लोगों से बात करना है, कैसे मेरे को अप्रोच करना है लोगों को। ये सब चीजें जानना है। और इसके लिए आपको जो है जितना हो सकता है अपने आप को प्रिपेयर करना है। इसके लिए आपको जितना हो सकता है रिसर्च करना है, और इसके लिए जितना हो सकता है आपको गाइडेंस लेना है। इसमें जो कोई भी आपको गाइड करता हो उससे आपने गाइडेंस लेना है। जैसा मैंने पहले भी कहा, एएनपी पे हम बहुत सारी चीजें ऐसी गाइड करते हैं, और इससे आप काफी फायदा ले सकते हैं। फोकस ऑन वन स्टोरी टू टेल, बी कॉन्शियस, बी स्पेसिफिक, कनेक्ट योर स्टोरी टू द पोजिशन। अब यहाँ पे जो है प्रोफेशनल हो, यानी ठीक है आपको, जैसा मैंने कहा प्रोफेशनल, अभी आप सोचोगे कि मैं तो फ्रेशर हूं, मैं कैसे प्रोफेशनल हो सकता हूं। बट आप ये सोचने की कोशिश कीजिए कि आप फ्रेशर हो लेकिन आप जॉब के लिए जा रहे हैं। तो आप उनको कहना चाहते, आपने ये कहना है कि आप अपनी बेस्ट कोशिश करोगे सीखने के लिए और फॉलो करने के लिए और अपने आप को अडेप्ट करने के लिए। ये सब चीजें जो है ये आपको जो है इसमें हेल्प करेगी। सो यहाँ पे जैसे हम कह रहे हैं कि इंटरव्यू क्वेश्चंस जो है, मैंने आपको कहा कि व्हाट डू यू नो अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन। अभी आपने अगर पढ़ा ही नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो ये जवाब आप दे नहीं पाओगे। और ये अक्सर बहुत सारी कंपनीज पूछते हैं कि व्हाट डू यू नो अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है उसके बारे में तो आप तो बोले सर आई डोंट नो एनीथिंग। और द मोमेंट यू से आई डोंट नो, it is like, you've already cut off your chances of getting ahead in the job. So please try to do some research on the organization. अगर आप नहीं कर पाए हो, अगर आपको नहीं भी पता हुआ हो जब आप तो आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हो आपको कंपनी का नाम भी पता लग जाता है कि जहां आप इंटरव्यू के लिए गए हो। तो इमीडिएटली आप मोबाइल में चेक कर सकते हो कंपनी के बारे में क्या दिया गया है। एक शॉर्ट ब्रीफ भी अगर आप जान लेते हो तो आप ये सब चीजों को आंसर कर पाओगे। व्हाई डू यू वांट दिस जॉब, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट जॉब होता है कि कुछ सम पीपल से सर आई एम वेरी मच इन नीड ऑफ अ जॉब। सो व्हाट इफ यू आर इन नीड ऑफ अ जॉब, यानी इंस्टेड ऑफ शोइंग योर नीड, इससे अच्छा कि आप बताओ कि आप नीडी हो। आप ये बताओ कि आप क्या बोलते क्वालिफाइड हो, आप जो है एंथुजियास्टिक हो, आप जो है दूसरों से बेटर आप कोशिश करोगे अपने आप को ये करने के लिए। इस तरह से आपने जॉब को मतलब ये करना है, नहीं कि बता के आप नीडी हो, आपको मतलब बहुत जरूरत है, आपके घर में बहुत प्रॉब्लम है। ये सब बातें नहीं करना है। कुछ लोग जो है शुरू हो जाते हैं मेरे घर में ये है और फलाना है, यानी दे बिकम सो पर्सनल इंटरव्यू में, एंड इट इज नॉट रियली। आप ये सोचिए कि इंटरव्यूअर जो है उसको आपकी पर्सनल लाइफ से, आपके पर्सनल इससे कोई मतलब नहीं। वो तो वहां पे जो उसके हिसाब से बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट है उसको चूज करने के लिए बैठा है। उसको उसकी कंपनी के लिए बेटर करना है, आपके लिए बेटर नहीं करना है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, डू नॉट शो योर वीकनेस, तब तक से आप कभी जॉब नहीं ले पाओ। तो observation where you did meet your goals, objectives. Some people tell me, कुछ लोग बोलते हैं कि सर हमने, हमारे पास तो कोई एक्सपीरियंस नहीं। अरे आपने कॉलेज में कुछ किया होगा, आपने किया होगा, या आपने कोई पार्टी अरेंज किया होगा, या आपने कुछ सोशल वर्क किया होगा, या आपके एनवायरमेंट में आपने कुछ किया होगा। उसको एज योर अचीवमेंट, उसको पेश कर। जरूरी नहीं कि आपने जॉब करके ही अचीव किया हो, आपकी पर्सनल लाइफ में आपने कुछ भी अगर अरेंज किया हो। जैसे मतलब मिसाल के तौर पे मेरे को एक बहुत अच्छा ये मिला कि सर आई हैड वी हैड अ बिल्डिंग पिकनिक एंड आई
went and around and got in touch with few people, and I got discount on the food and the drinks, and we saved a lot of money. This building society were very happy because of that. मतलब उसने ये बताया कि उसने एक बिल्डिंग की पिकनिक के लिए कैसे जाके 10 जगहों से खाने का रेट कम करा के, कोल्ड ड्रिंक्स का रेट कम करा के उसने जो है बिल्डिंग के लोगों को फायदा किया। तो वो जो है उसका एक एंथुजियाज्म दिखाया, और उसने एक ये बताया कि उसने कैसा अपने माइंड को स्मार्टली यूज किया। ये चीजें जो होती है वो हमारे को ये करती है, मतलब इंप्रेस करती है। हमें मालूम है आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आप क्या दूसरा कर सकते हो, क्या और दूसरी चीजें कर सकते हो, वो जानने की कोशिश करते हैं हम। तो ये समझने की कोशिश कीजिए कि हम जब आपसे कह रहे हैं कि गिव मी एन एग्जांपल ऑफ योर गोल्स, गोल्स तो एवरीबॉडी हैज ग्रेट गोल्स, बट व्हाट हैव यू अचीव्ड, आपका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा या अचीवमेंट क्या रहेगा, तब आपने कोई अचीवमेंट अगर बता सकते हो, इट विल बी अ ग्रेट हेल्प। ये सब चीज के लिए आपको पहले अपने आप को स्टडी करना है, अपने आप को थोड़ा रिसर्च करना है, अपने आप के बारे में थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करना है, अपने बारे में थोड़ा जानकारी लेना है कि आपको, मतलब हर कोई सोचता है कि मैं तो बेस्ट हूं, लेकिन दुनिया तुम्हारे बारे में क्या कहती है, आपके घर वाले तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, आपके स्कूल फ्रेंड्स, आपके टीचर्स, वो जानने की कोशिश कीजिए। गिव एन एग्जांपल ऑफ सिचुएशन एंड यू आर फेस्ड विद अ कॉन्फ्लिक्ट और अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। मतलब कोई दोस्त झगड़े कर रहे हो, या कोई आपके मतलब कुछ प्रॉब्लम हुई हो, किस तरीके से आपने उसका मुकाबला किया। तो ये हम क्यों जान रहे हैं? आप बोलोगे कि भाई हमारे को इससे क्या मतलब, कि आप डिफिकल्ट सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो, आप कोई टेंशन में आके कैसे आपका मतलब संतुलन नहीं खुदता है। तो वो चीजों को हम जानने की कोशिश। वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years फ्रॉम नाउ, आप अपने आप को 5 साल के बाद क्या सोचते हो, क्या होगा। अक्सर मैंने देखा है लोगों को ऐसा कोई अचीवमेंट का ये नहीं रहता, सर 5 years आई डोंट नो, कुछ तो भी होगा। अगर आप अपने बारे में खुद ही नहीं सोचते हो, अगर आप अपने बारे में खुद ही नहीं प्लान करते हो, तो मुझे नहीं पता कि आपके लिए कौन कर सकता है प्लान। मेरा एक क्वेश्चन है, और मेरे ख्याल से क्वेश्चन आवर्स में मेरे ये क्वेश्चन का जवाब मैं चाहता हूं कि आप सब ने जो यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स है, ये 6 महीने लॉकडाउन में आपने अपने लिए क्या करने की कोशिश की है बेटर होने के लिए। आपने अपने आप को बेटर करने के लिए इस 6 महीने में क्या कोशिश किया, किस चीज के ऊपर आपने कंसंट्रेट किया, किस चीज के लिए आपने मतलब कोशिश करे उस वीकनेस को। हर इंसान में स्ट्रेंथ होती है और वीकनेस होता है, तो वो वीकनेस को आपने आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर वर्क करने की कोशिश किया। अक्सर मेरे पास लोगों का एक वीकनेस हमेशा आता है सामने, वो है कम्युनिकेशन स्किल। उनको बात करने से हिचकिचाहट होती है, वो डरते हैं बात करने के लिए। दोस्तों के सामने एकदम बिंदास होके मैं बहुत बड़ा 30 मार खान हूं, लेकिन जहां कहीं कोई बड़े के सामने आ जाते तो वो जो है पानी कम चाय हो जाते हैं। तो आप लोगों में वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा अगर आप बात नहीं करोगे। कम्युनिकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्किल, और उसमें इंग्लिश वीक है, या मैं बोल नहीं पाता हूँ बराबर से, या मेरी जो लैंग्वेज की प्रॉब्लम है। इंग्लिश कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और माइंड यू कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर आप जाना चाहते हो तो इंग्लिश जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपको अंदर कॉर्पोरेट में जाने के लिए। और इंग्लिश सीखने के लिए आज की तारीख में, मतलब हम पहले जमाने में बोलते थे भाई न्यूज़पेपर ले लो, उसे पढ़ते रहो जोर से, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी जबान खुलेगी और तुम इंग्लिश बोल पाओगे। लेकिन आज तो मेरे ख्याल से तुम्हारे पास मोबाइल में 100 ऐप है, लर्न इंग्लिश और ये वगैरह वगैरह, और नेट पे भी बहुत सारे ऐसे हैं साइट्स जो है जहाँ पे आपको बाकायदा इंग्लिश ट्यूटर्स हेल्प करते हैं प्रोनाउंसिएशन में, वोकैबुलरी में, ग्रामर में, हर एक चीज में। प्लीज एक्सक्यूज मत बनाइए। एक्सक्यूज वो बनाता है जो नहीं कुछ पाना चाहता है। अगर आप गेटर हो, अगर आप कुछ पाना चाहते हो, तो एक्सक्यूज बनाना छोड़ दीजिए। सबसे पहले आपने एक्सक्यूज बनाना छोड़ना चाहिए लाइफ में। सो
what would your current manager say are your weak strengths and weakness? Yeah, what is your strength and weakness as a newcomer? First, try to identify what is your strength. What do you consider as your strength, and what do you feel is your strength, and what others also observe in you as your strength, and what is your weakness. Then start working on your weakness. अपनी strength को तो तुम जानते हो कि भाई मैं बहुत बहुत अच्छा ये कर लेता हूँ, या एंड ये मैथ्स में बहुत अच्छा हूँ, साइंस में बहुत अच्छा हूँ, या जो भी चीज है, या अकाउंट्स में बहुत अच्छा हूँ, ये स्ट्रेंथ है तुम्हारी. बट तुम्हारी वीकनेस भी तुम्हें अच्छे से जानते हैं, तो उस पर पहले वर्क करो, अपने वीकनेस को हटाने की कोशिश कीजिए. बहुत सारी ऐसी वीकनेस होती है जो हम हटा सकते हैं लाइफ में. कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, हर कोई को जो है लाइफ में कोई वीकनेस होती है, उससे वो उस पर वर्क करके उसे हटा करके वो आगे बढ़ता है. वाई शुड वी गिव यू दिस पोजिशन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको हम ये क्यों सेलेक्ट करें, क्या आप में क्या ऐसी कौन सी बात है. अभी आपको यहाँ पे अगेन आपकी क्वालिटी, आपकी स्ट्रेंथ देखना है और उसको जॉब के साथ मैच करना है. जब आप अपनी स्ट्रेंथ को जॉब के साथ मैच करोगे तो ऑटोमेटिकली आप इंटरव्यू को कन्विंस करोगे कि आप बेस्ट कैंडिडेट हो. So give us an example of what you faced with a big challenge. Again, ये मैंने बताया जैसे न्यू कमर्स या फ्रेशर्स के लिए आपको अपने पर्सनल लाइफ से कुछ ऐसे चैलेंज देखने पड़ेंगे जिसको आप प्लेस कर सकें. डू यू लाइक वर्किंग इन टीम्स? अब यहाँ पे अगेन तुमने काम नहीं किया होगा टीम में, बट अगर तुमने क्रिकेट खेला है, तुमने फुटबॉल खेला है या कोई गेम्स खेले हैं जो टीम के साथ है, तो वो चीज आपका रेफरेंस बनता है टीम के लिए. आई वॉज अ टीम कैप्टन, या आई वॉज प्लेइंग दिस टीम एंड आई वॉज बॉलर और समथिंग लाइक दैट. तो वो चीजें आपकी एक रेफरेंस बनती है कि आई एम अ टीम प्लेयर. व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू वुड चेंज इफ यू वर टू स्टार्ट वर्किंग? ये एक बहुत कैची क्वेश्चन होता है कि आदमी सोचता है कि मैं इस चीज को जो है इस तरह से कैसे जवाब दूं. तो यहाँ पे अगर आप सोचते हो कि ये इंटरव्यू क्या देखने की कोशिश कर रहा है, तो इसलिए मैंने जब कहा ना आप वहां जल्दी जाओगे, अगर आधा घंटे पहले जाते हो तो आप पहले हमेशा ऑब्जर्व करिए. अगर आपको कुछ चीज दिखता है कंपनी में जो आपको लगता है कि मतलब सही नहीं हो, या कुछ भी ऐसा हो सकता है, देयर कुड बी एनी पॉसिबिलिटी. लाइक आई गिव यू एन एग्जांपल. मेरे लास्ट इंटरव्यू में मेरे को एक बंदे ने बहुत सरप्राइज कर दिया. तो मैंने यही सवाल पूछा था कि व्हाट वुड यू लाइक टू डू व्हेन यू फर्स्ट कम टू. तो उसने कहा, सर आई वुड फर्स्ट लाइक टू आस्क द हाउसकीपिंग टू कीप द टॉयलेट्स क्लीन. एंड आई सरप्राइज्ड मी because he went to the toilet, he found it dirty and he said it in the interview. मतलब उसने वो चीज को ऑब्जर्व किया कि वो गंदा था वहां पे, और उसने मुझे इंटरव्यू में बोल दिया. एंड इमेजिन, मेरे लिए वो अच्छा फीलिंग था क्योंकि मैंने उसके बाद जो है हाउसकीपिंग को बुला के इमीडिएटली वो एक्शन ले लिया. बट इट वाज ऑल्सो मेरे लिए वो बंदा जो है वो बहुत हेल्पफुल रहा एंड ही गॉट द जॉब ऑब्वियसली. बट यानी बिकॉज ऑफ दिस स्मार्टनेस, उसकी जो स्मार्टनेस थी वो मुझे हेल्प करी. तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको हमेशा ऑब्जर्वेंट रहना चाहिए. अभी क्या हुआ? ओके, सो टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस यू शुड आस्क. हाँ, तो जैसे मैंने कहा था कि you should ask some questions to the interviewer. That is like, what do you like most about working for this company? Tell me about the culture. Yani you can ask, what is the culture of this company? आपकी कंपनी की कल्चर क्या है? What are its core values of the company? How will I be evaluated? What is the evaluation process for you? Why is this position vacant? You can ask him. Obviously, if it is a new position, he will tell you that we are having new vacancies filled in. So, why do you think job applicants choose to work here rather than your competitors? You can
You can ask that because this is only in a normal scenario. Today, this scenario doesn't exist. What are the next steps? You can always ask that also. Sir, after this, what happens? What will be the next steps? If you if you go for the interview, you can ask him, sir, what are the next steps of interview? Answering tips again, maintain eye contact. ये सब तो कहा मैंने. So prepare your stars. Understand what skills the company consider critical to success. Write out the stars for each skill on your resume. So you have to understand that you have to prepare your stars. जैसे कि what was the situation? As I said, you may be a new or fresher, but you have faced some situations in your life where you should keep that as your reference when you're talking to your interviewer. What were the tasks you did, if you did anything, what actions you took for that, and what was the result of your action? Did it help people? That is what is your star action you should try to understand. Now, there are certain questions which कुछ चीजें ऐसी होती है जो इंटरव्यू में कभी बोलना नहीं चाहिए. यानी कि अगर आप फ्यूचर लाइफ में भी जब जाते हो, आपके साथ बहुत सारे ऐसे केसेस हो गए कि आप बॉस के साथ नाराजगी होगी, मैनेजर आपको पसंद नहीं आएगा, कंपनी आपको नहीं अच्छी लगेगी. बट लेकिन अगर आप दूसरे इंटरव्यू के लिए जब जाते हो और अगर आप वहां जाके उस कंपनी के बारे में कंप्लेन करते हो, उस बॉस के बारे में बुरा भला कहते हो या उसके बारे में कुछ ऐसी गंदी बातें करते हो, तो माइंड यू द इंटरव्यूअर विल नॉट अप्रिशिएट इट एट ऑल. ये जो है कभी भी इस तरीके की बातें नहीं करना चाहिए इंटरव्यू में. दिस जॉब इज वन ऑफ द सेवरल फॉर विच यू आर अप्लाइंग. जैसे अभी मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोग गल्फ से आए होते हैं और उनके पास मतलब गल्फ का जॉब छूटा रहता है, तो वो आते हैं और बोलते हैं, उनसे ये पूछा जाता है why should I hire you or why are you looking for this job? तो कहते हैं, sir, because my Gulf job has gone, so I'm looking something now. यानी उनका जब वो नाम होता है उसका मतलब ये होता है कि अभी तो हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं, बाद में जैसे ही गल्फ में जॉब मिल जाएंगे हम चले जाएंगे. तो कौन आपको इतने टाइम के लिए रखना चाहे? तो डो नॉट. कुछ लोग ऐसे भी आते हैं, सर अभी मेरे को 2 महीने के लिए मतलब जो है ब्रेक है, इसलिए मेरे को जो है अभी पढ़ाई की ब्रेक है, तो फॉर 2 months आई वांट अ जॉब, आफ्टर दैट आई विल जॉइन माय स्टडीज अगेन. व्हाई विल आई वेस्ट माय टाइम विथ यू फॉर 2 months? भाई फॉर 2 months मैं आपको क्यों रखूं? मेरा एफर्ट जा रहा है आपको ट्रेन करने में, तो मैं आपको 2 महीने में रख के करूंगा क्या? तो प्लीज नेवर, अगर आप इस तरीके का आपका मतलब कुछ बैक एजेंडा भी है तो उसको अपने आप तक का रखिए. अगर आप इंटरव्यू में बोलोगे तो आप कभी सेलेक्ट नहीं होगे, वो कभी आपको मतलब उस चीज में कभी सफलता नहीं हो. यू हैव एन इनसाइड कॉन्टैक्ट और रिलेटिव हु हैज गिवन यू लॉट्स ऑफ इनसाइड इंफॉर्मेशन. मतलब अगर फर्ज करो आपका भाई या कोई भी रिलेटिव अगर उस कंपनी में काम भी कर रहा है तो आपने उसको मेंशन नहीं करना है. बिगेस्ट मिस्टेक्स जो इंटरव्यू में लोग करते हैं वो है हैविंग नो क्वेश्चंस, टर्निंग अप लेट, बीइंग अनप्रिपेयर्ड, टेक्स्ट बुक आंसर्स या टेक्स्ट बुक रेज्यूमीज. अक्सर जैसा मैंने कहा साइबर कैफे वाला रेज्यूमी या ऑनलाइन देख लिया एक रेज्यूमी, उसी कट पेस्ट कर लिया और उसको लगा दिया. प्लीज वैसे मत कीजिए. हम लोग के सामने 100 रेज्यूमीज आते हैं. हमारे को समझ में आता है जब हम एक कट पेस्ट रेज्यूमी देख रहे हैं और एक जेन्युइन रेज्यूमी देख रहे हैं. हमेशा ओके, यू कैन टेक आइडियाज फ्रॉम देयर बट मेक इट इन योर ओन वर्ड्स. अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करो उसे, उसमें थोड़ा वर्क करो, थोड़ा उसमें गाइडेंस लो लोगों से. और सबसे खराब बात, बीइंग एरोगेंट. सर आई एम द बेस्ट, मेरे जितना आपको कोई मिलेगा ही नहीं, या सर मैं तो एक नंबर मतलब बढ़िया, एकदम बढ़िया आदमी हूँ, मेरे जितना ऑनेस्ट और सिंसियर कोई नहीं मिल सकता. ऐसे वर्ड्स यूज करना जो है इरिटेशन है और एक मतलब जो है कभी भी उसमें आपको कोई भी तरीके से नहीं एक्सेप्ट करेगा. तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड
कि रिसर्च करना जरूरी है, प्रिपेयर होना जरूरी है, टाइम पे रहना जरूरी है, क्वेश्चंस पूछना जरूरी है, और अपने आप को जरा कंट्रोल रखना और बराबर से आंसर्स देना जरूरी है। सो मेरे ख्याल से ये मेरा लास्ट स्लाइड है। आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मैं फिर से ये सारा चीज जो मैंने अभी तक का कहा है, इसमें ड्रेस कोड होना, किस तरह से आपको जो है टाइम, लोकेशन, ये क्यों होता है। आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन, जैसे अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, कोई ड्रेस कोड फॉलो करना है, अगर उन्होंने नहीं कहा है तो भी फॉर्मल हमेशा यूज करना है, इररिस्पेक्टिव आप कोई भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो। तो जीन्स और टी शर्ट को अवॉइड कीजिए, स्लीपर्स और सैंडल्स को अवॉइड कीजिए, शूज पहनिए। टाइम पे जाना, लोकेशन पहले से जान लेना। अक्सर ऐसा होता है कि सर लोकेशन, मैं तो वो गली के पास चला गया था, मतलब वो बाजू वाली गली में। अरे भाई, पहले से ही लोकेशन जानने की कोशिश करो। आप गूगल मैप की दुनिया में जी रहे हो, गूगल मैप जो है आपको बराबर से लोकेशन पे पहुंचाता है। इसलिए आजकल के लोग अगर जब इस तरह से एक्सक्यूज देते हैं, तो ये पहले ही दिखा देते कि वो इतने स्टूपिड है कि उनको कोई जॉब पे रखना ही नहीं चाहेगा। तो इसके लिए अगर आप पहले से ही स्टूपिड बनोगे तो फिर आपको कौन जॉब देने चाहेगा। तो पहले इसीलिए थोड़ा प्रिपेयर्ड हो, नाम जानने की कोशिश करिए। जो ये सारा चीज जो है ये रिसर्च करने से ही होता है, ये जानने से ही होता है, पूछने से होता है। प्लान करना रूट के हिसाब से, इस कौन से रूट से जाना है, कहाँ से तुम्हारे को इजी पड़ेगा, कैसे तुम्हारे को, मतलब अगर इंटरव्यू ऑनलाइन है तो तुम्हारा नेटवर्क है, फोन नेटवर्क है तो वो मोबाइल से होगा, तो तुम्हारा क्या बोलते हैं, वो कंप्लीट होगा या नहीं, डेटा पैकेज, वो सब चीजें जानना पहले से ही जरूरी होता है। इन बिटवीन अगर आपका डेटा पैकेज खत्म हो गया और आप बोल दिए सर मेरा डेटा पैकेज खत्म हो गया, तो इंटरव्यू खत्म, तो तुम्हारे को दोबारा कोई फिर कॉल नहीं करेगा उस तरीके से। प्लीज ट्राई टू बी प्रिपेयर्ड, हर एक चीज में अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। ये जिस तरह से आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हो, एग्जाम के लिए जाते हो तो पेन होना चाहिए जरूरी, ये सारी चीजें, आइडेंटिटी कार्ड, ये सब चीज होना जरूरी होता है। इसी तरह से एक इंटरव्यू के लिए जब जा रहे हो तो हर एक चीज को पहले से ही प्रिपेयर करके जाइए। डू नॉट गो प्रिपेयर्ड। प्रिपरेशन इज द मस्ट इन द इंटरव्यू। प्रिपरेशन जो है वो उसकी मतलब उसमें तो आपका आधा चीज जो है, आपका कॉन्फिडेंस वहीं आ जाता है। जब आप पहले से अनप्रिपेयर्ड जाते हो और आपके पास अगर कुछ चीज नहीं है, आप वहां जाके फिर आपको ये होता है कि अरे यार ये मैं नहीं मिला, वहीं आपका कॉन्फिडेंस टूटने लगता है। तो इसीलिए प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। प्रिपरेशन पहले कीजिए ताकि आपका जो है हर एक चीज सही चले। यूज कॉमन सेंस। अभी यहाँ पे अक्सर मैंने कहा जैसे बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीजें, मतलब मैं क्या बताऊं आपको, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जिससे कि आपको मतलब उससे शेयर भी करना अजीब लगता है। कुछ लोग जो है मतलब अपने कॉमन सेंस ही नहीं यूज करते। इंटरव्यू के लिए क्या करना है, किस तरह से ये अपने आप को प्रेजेंट करना है, ये सब चीजें वो कॉमन सेंस को के दायरे में रख के नहीं चलते। प्लीज थोड़ा गाइडेंस लो, मेंटोर्स बनाओ, किसी से पूछो, किसी से गाइडेंस लेने की कोशिश करो, क्योंकि अभी ये तुम्हारी बुनियाद है। इसे अगर तुम सही करोगे तो तुम हमेशा आगे जाके तुम सही चलोगे। अगर यहीं पे तुम रॉन्ग चलोगे तो तुम आगे भी हर वक्त तुम रॉन्ग रहोगे। दिस इज योर बिगिनिंग, so go in the proper way, in the proper format, in the proper manner that is required of you. Do not make mistakes which will not help. Be aware of your body language at all times. Try to always keep your body language to the best of your ability. Yani, even I have seen people who are handicapped, who have got problems, I've interviewed guys who are blind. You won't believe it. But the guy is talking to you as if, he is literally seeing you and he's smiling and he really impresses you.
and then you feel happy about it. ऐसे लोगों से जब आप बात करते हो तो आप खुशी महसूस होती है कि ये सारा जो है ये देख भी नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो इतनी कॉन्फिडेंटली बात कर रहा है, इतने खुशी से बात कर रहा है. मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब आप बात कर रहे हो तो थोड़ा एंथुसियाज्म लाइए अपने बात में. एकदम डल होके बात मत कीजिए, एकदम मतलब जो है जैसे कि दुनिया खत्म हो गई है, मैं अभी ये जॉब नहीं मिला तो आज के बाद मैं नहीं ढूंढूंगा, ऐसे मत बिहेव कीजिए. ये सब एटीट्यूड जो है आपको मेंटली स्ट्रेस भी कराती है, आपको मेंटली और डिप्रेस कराती है, और आपको जो है आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल को एकदम डाउन करती है. प्लीज आपकी बॉडी लैंग्वेज को हर वक्त देखिए. मैं एक आपको एक ये देता हूं, जब भी इंटरव्यू के लिए जाइए ना, टॉयलेट वॉशरूम में जाइए, मिरर पे देखिए और बोलिए आई एम द बेस्ट, और अपने आप को मतलब वो कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश कीजिए, ये बोल के आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट. इस तरह से अपने आप को थोड़ा कॉन्फिडेंस लाइए, और अपने अपने जो अंदर के बॉडी को जब आप ये करो, फील करोगे, तो ऑटोमेटिकली आप में वो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप जो है और हिम्मत से और जेस्ट से बोलोगे. सो एंड ऑन अ गुड नोट. जब भी आप खत्म करते हो इंटरव्यू में, भी आपको जॉब मिले नहीं मिले दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, बट राइट रखिए कि जब आप जा रहे हो तो थैंक यू बोलना, हमेशा उसके साथ हाथ मिलाना, उसको जो है अप्रिशिएट करना उसके टाइम देने की वजह से, और कोशिश करना कि अगर वो आपको उसका कार्ड शेयर करना चाहता है तो, विच मोस्ट केसेस में लोग नहीं भी देते, लेकिन अगर दे दिया तो ठीक है. दैट मीन्स अगर उसने दिया है तो दैट इज वन स्टेप दैट ही इज मोर लेस इम्प्रेस्ड बाय यू. तो आपके लिए एक किस्म का ग्रीन सिग्नल बन जाता है कि इसको मैं कम से कम इम्प्रेस फर्स्ट राउंड में तो कर चुका हूं. तो send follow-up notes. This I never see happening with 90%, 99% of people who go for interviews. इंटरव्यू होने के बाद आपको जिसने भी ईमेल भेजा हो उसको एक थैंक यू भेजना, कोई ज्यादा नहीं लगता, ना कुछ पैसे लगने, उसमें सिर्फ थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, आई अप्रिशिएट. आपको ये होता है कि आपने एक नोट भेजा, बट दैट इज नॉट अ नोट, माइंड यू. आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ वो एक नोट है, नहीं. इंटरव्यू को जब वो नोट मिलता है तो उसको ऐसा लगता है कि हाँ वाकई में देखो इतने लोगों में इसने ही सिर्फ मुझे थैंक यू भेजा. तो इट गिव्स यू अ बेटर चांस इफ यू आर वन ऑफ द सेलेक्टीज. अगर 5 लोगों में से आप 1 है तो माइंड यू, यू बिकम द नंबर 1. अगर 5 लोगों को उसने शॉर्टलिस्ट किया है, उसमें से अगर आप हो एक, तो आप नंबर 1 बन जाते हो. कम से कम मेरे जैसे इंटरव्यूअर अगर होगा और अगर आपने मुझे थैंक यू नोट भेजा है तो आप मेरे लिए फिर नंबर 1 बन जाते. ओके, सो इफ यू हैव नॉट सेलेक्टेड आस्क फॉर अ फीडबैक. ये भी एक बहुत सारी चीज है जो अक्सर लोग नहीं पूछते. अगर आपको नहीं सेलेक्ट किया है तो आप उस फीडबैक पूछ सकते हैं. सर कैन यू टेल मी व्हाट वाज, हाउ कैन आई इंप्रूव माई सेल्फ, what can you give me a feedback on my interview, can you please inform me what was short or what did you find not satisfying in my interview. तो इस तरीके से आप जो है अपनी जो कमी है उसको जान सकते हो और उससे इम्प्रोवाइज कर सकते हो. So I think are you there? Hello, Ehsan. Yes, sir, we just Hello. 30 seconds we had lost you. Now we can hear you. It's audible, sir. It's audible. Oh, okay. So I have finished my lecture. Now I have these few evaluation questions, if they would like to answer it. And I'm ready for question and answers. Sure, sir. I'll read out the questions.
So there's one हाँ student by the name of Mohammad Taslim Malik. Sir, हिंदी में इंटरव्यू दे सकते हैं क्या? So हाँ जरूर uh, दे सकता हूँ। हाँ हाँ, like अच्छा suppose if हिंदी में इंटरव्यू दे सकते हो या? ओके। yeah. देखिए हिंदी में इंटरव्यू देने का जो सवाल आता है वो डिपेंड करता है कौन सी जगह पे हो, कहाँ पे रह रहे हो। अगर आप अ, अ, क्या बोलते हैं, फर्स्ट करो आप बॉम्बे या दिल्ली या दूसरे सिटी में हो, कॉर्पोरेट में जा रहे हो, तो ऑलमोस्ट 75 to 80% मुझे नहीं लगता है कि हिंदी में इंटरव्यू स्टार्ट होगा। हाँ ये हो सकता है कि फिर बाद में जैसा फ्लो चलेगा वैसा हिंदी भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द इंटरव्यूअर। क्योंकि इंटरव्यू जो ले रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो अगर हिंदी में स्विच करता है अपने आप को, तो अगर आपको थोड़ा भी इंडिकेशन दिया स्विच करके, तो फिर आप उसको मतलब हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन अगर उसने इंग्लिश ही रखा तो आप हिंदी में उसे कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो उससे जो है आपका जो है इंप्रेशन बराबर नहीं जाएगा। और मोस्टली ये होगा कि क्या बोलते हैं, अगर आपको इंटरव्यू देना है तो जैसे अगर लोकल कंपनी है या छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे हिंदी में ऑब्वियसली दिया जा सकता है इंटरव्यू, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन अगर कॉर्पोरेट में है जहां पे एचआर डिपार्टमेंट है वगैरह, तो फिर वहां पे मुझे जहां तक का ख्याल है कि ऐसा नहीं होगा। इज दैट और कोई आंसर्स क्वेश्चंस? thank you. So there's another question from Mr. Prakash Kumar. What to include in cover letter for resume? See, as I said, if you go on the net, there are a lot of cover letters which are available. You have to look, if you are a fresher, you have to look for a fresher's cover letter. Then you have to also look for the type of job you're looking for. If you're looking for an accounts job, if you're looking for a sales job, that and based on your skills, then you have to prepare your cover letter. Or if not that, then based on the advertisement that you have seen, you have to base your cover letter. Cover letter should always be fresh for every resume that you are sending. एक ऐसा स्टैंडर्ड कवर लेटर जो बनाते हैं और स्टैंडर्ड सीवी जो रेज्यूमे जो बनाते हैं, वो अक्सर मेरे पास यही क्वेश्चन लेके आते हैं, सर हमने तो बहुत जगहों पे सीवी भेजा, रेज्यूमे भेजा, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। सो दिस इज स्टैंडर्ड because you are using standard practice, so you will get a standard reply. If you will be more productive, if you will be more, if you will try to do a little in-depth study, जैसा आप, it is simple. अगर आप एग्जाम के लिए जाते हो और अगर आप पढ़ाई नहीं करते हो, आप रट्टा मार के जो लिखते हो, तो उस हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने अच्छी से पढ़ाई की हो, अगर उसका थोड़ा मतलब ध्यान दिया है, तो उस हिसाब से आपका ग्रेड्स आएंगे। सो इट इज ऑल डिपेंडिंग ऑन यू। इंटरव्यू इज नथिंग बट like an exam, so it is your first test. Hello. Thank you. Shall I proceed to the next question, sir? Yeah, please. There's an anonymous attendee. Hello, sir. Good afternoon. How to avoid nervousness while answering? Very nice. uh, how to avoid nervousness? नॉर्मली हर कोई जो होता है ना, नर्वस होता है फर्स्ट इंटरव्यू में, चाहे अगर वो कितना भी कोशिश करे, वो थोड़ा सा नर्वस होता है। सो डोंट अवॉइड नर्वसनेस। नर्वसनेस इज अ पार्ट ऑफ द इंटरव्यू, बट यू हैव to control your nervousness. Instead of saying avoid nervousness, you have to say, how should I control my nervousness? The first thing is that, as I said, be on time, be relaxed,
try to do research. If you are completed in all these things, if you are done a little study about the company, and most importantly, believe in yourself. Don't tell lies. झूठ मत बोलो. जितने लोग झूठ बोलते हैं ना, वो अक्सर नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा बोलने की कोशिश करते हैं, फिर वो जो है कंटिन्यू चेन बनता जाता है. तो प्लीज इंटरव्यू में जितना आप हो सकता है झूठ मत बोलिए. अगर आपको नहीं आता है ना, तो आप बोल सकते हो कि सर आई विल ट्राई टू लर्न दिस और आई विल ट्राई टू वर्क ऑन इट. इस तरह से आप जवाब दे सकते हो. कभी भी ये भी मत बोलिए कि आई डोंट नो. अगर आपने ये कह दिया आई डोंट नो, उसका मतलब आपको नहीं मालूम. बट उससे अच्छा बेटर ये होता है कि सर आई विल ट्राई टू वर्क ऑन इट और आई ट्राई टू लर्न मोर अबाउट इट. ये नहीं तुम बोल रहे हो कि मुझे नहीं मालूम है, बट ये तुम कह रहे हो कि मैं उसके बारे में और जानने की कोशिश करूंगा और समझने की कोशिश करूंगा. So, does that satisfy your question? Yes, thank you, sir. There's one student by the name of Shubham Saha. So my question is, what is the best or specific answer for the question, why do you want the job? Again, as I said, that there is no one specific question or answer to all these questions. It is all related on you. You have to answer yourself. You have to understand your requirement. Why do you want the job? Now, for instance, if somebody is to ask a new trainee, why do you need the job? So now, mostly, why do I need the job is to gain experience, obviously. Because if I want to work, if I want to get ahead in life, I have to gain experience. I have to start working somewhere. मतलब कहीं तो मेरे को स्टार्ट करना है, मुझे एक्सपीरियंस गेन करना है. मैंने पढ़ाई तो कर ली है 12 साल 14 साल, अब मुझे एक्सपीरियंस गेन करके काम करना है, इसीलिए मुझे जॉब चाहिए. और क्या मतलब, और व्हाट एल्स वुड बी माय रीजन, अनलेस व्हेन यू हैव दिस क्वेश्चन चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम. अभी आप एज अ न्यू मतलब रिक्रूट हो, इंटर्न हो, ट्रेनी हो, तो आपके लिए ये जॉब आंसर फिट होता है. आप 10 साल काम किए हो कहीं पे और फिर आप जॉब चेंज कर रहे हो, तो फिर आंसर दूसरा रहेगा. इट विल नॉट बी द सेम. प्लीज इसके लिए हर जॉब, हर क्वेश्चन का रिलेट होता है आपसे. मतलब अगर एक फ्रेश ट्रेनी जॉब के लिए ये कर रहा है और उसको अगर मैं ये सवाल करूं, व्हाई डू यू नीड द जॉब, तो अगर वो मुझे कहेगा बिकॉज आई नीड टू गेट एक्सपीरियंस, आई नीड टू गेट working, I need to understand the working system, I need to understand the office life, so that is his answer. But अगर एक कोई बंदा जो 5 साल काम किया है, उसके बाद वो जॉब शिफ्ट करना चाहता है, उससे मैं ये पूछूंगा तो वो थोड़ी ऐसा जवाब देगा. वो तो ये कहेगा I want to have a better prospect in life, I'm looking for better opportunities, I'm looking for a better growth in life. ये सब उसके आंसर्स हो गए. तो इट विल डिपेंड, चेंज होगा उसके हिसाब से. Thank you so much. Is that answer okay? Yes, thank you so much. There's one question from Mr. Salman Chaudhary. So references, should we mention or not? So he means to ask, should we mention references in our resume or not? देखिए, this is a very nice question, and let me tell you one thing. When you are an intern, when you are a fresher, you do not need a reference, please, because you have no reference. Who knows you? आपको कौन जानता है, सिवा आपके घर वाले या आपके कॉलेज वाले या आपके स्कूल प्रोफेसर. तो रेफरेंस वहां पे कोई देने की जरूरत नहीं है. इनफैक्ट मैं तो कहता हूं कि जब आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, रेफरेंस देना है ही नहीं. रेज्यूमे में तो रेफरेंस देना ही नहीं. क्यों? क्योंकि आप जब सेलेक्ट होगे, उसके बाद मुझे जो चाहिए आपसे मैं मांगता ही रहूंगा. आपके आईडी, आपका आधार, आपका रेफरेंस, ये सब चीज तो मैं तब मांगूंगा. रेज्यूमे में मेरे को क्या जरूरत पड़ेगी? मैं रेज्यूमे में उतना थोड़ी पढ़ने जा रहा हूँ कि आपके रेफरेंसेस कौन है. प्लीज नेवर मेंशन रेफरेंसेस, इवन इफ यू आर अ 10 ईयर ओल्ड. 10 साल अगर आपने काम किया है तो भी आप अपना रेफरेंस मत किए करें. रेफरेंस कभी मत मेंशन कीजिए, क्योंकि रेफरेंस हैज नो मीनिंग. रेफरेंस तो जब आपको मतलब जब आपको
सेलेक्ट होगा, आप रेफरेंस के हिसाब से आप जब सेलेक्ट होते हैं रेज्यूमे के, उसके बाद आप रेफरेंसेस दो। इसमें रेज्यूमे में बहुत सारे लोग कॉमन एरर्स करते हैं, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मैरिड स्टेटस, ये सब मतलब इतना ज्यादा बेवकूफी है कि प्लीज कभी भी फादर नेम मुझे कोई मतलब नहीं, मदर नेम से मेरे को कोई मतलब ही नहीं, वाइफ नेम से तो कोई मतलब नहीं, और आपका मैरिड है या नहीं मैरिड है उससे तो भी मेरे को कोई मतलब नहीं। तो प्लीज ये सब चीजें से रेज्यूमे कभी मत डालिए। अगेन दूसरा एक कॉमन एरर जो है वो ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंड प्लस फुल एड्रेस दे देते हैं, मतलब ये गली वो गली, ये नंबर वो नंबर सब डाल देते हैं। भाई देखिए, मैं आज ईमेल के जमाने में रहता हूँ, अगर मुझे आपसे कांटेक्ट करना है आई विल सेंड यू अ ईमेल और आई विल सेंड यू अ व्हाट्सएप मैसेज, नोबडी इज गोइंग टू सेंड यू अ पोस्ट कार्ड। तो वो पूरा एड्रेस डालने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ डाल सकते हो मुंबई मीरा रोड या मुंबई मुंब्रा या जो भी है, आप सिर्फ उतना भी डालोगे तो काफी है, नहीं भी डालोगे तो चलेगा, बिकॉज इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट unless you're not selected, there is no reason for you mentioning where you are from. ऑब्वियसली अगर आप बॉम्बे के हो तो ही आप बॉम्बे में अप्लाई करोगे, अनलेस आप शिफ्ट करना चाहते हो, देन इट्स अनदर स्टोरी। बट अगर आप बॉम्बे के रहने वाले हो तो ही आप बॉम्बे के जॉब पे अप्लाई करोगे, तो फिर आपको एड्रेस डालने की क्या जरूरत होती है? ये देखिए, मेनी पीपल एक रेज्यूमे का 4-4 पेज बनाते हैं, उसके बाद जब मैं उनको वही रेज्यूमे को एक पेज में बनाता हूं तो वो सरप्राइज होते थे, सर आपने ये 1 पेज में कैसे बना दिया? तो उसका फॉर्मेटिंग होता है, प्लीज लुक एट फॉर्मेटिंग्स फॉर रेज्यूमीज ऑन द नेट। मैंने इसीलिए कहा इसका स्टडी कीजिए। रेज्यूमी आपका पायदान है, आपका मेन बेस है, उसे स्ट्रॉन्ग बनाइए, उसे इंप्रूव कीजिए, हर टाइम पे रेज्यूमी को अपडेट करिए, ये चीजों को आप समझने की कोशिश कीजिए। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर कैरियर। अगर आपने रेज्यूमे को ही पे वर्क नहीं किया, रेज्यूमे को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया, तो आपका जो है इंटरव्यू के चांसेस कम है। आप तो इंटरव्यू में तब पहुंचोगे जब आपका रेज्यूमे अप्रूव होगा, इंटरव्यू में तब जाओगे जब आपको रेज्यूमे आपका सेलेक्ट होगा। सो प्लीज अगेन मैं ये आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि रेज्यूमे के लिए जितना हो सकता है रेफरेंसेस लीजिए। जैसे मैं बताता हूं आपको, एएमपी का टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसमें ज्वाइन कीजिए, उसमें हम आपको गाइड कर सकते हैं कि कहाँ से आपको रेज्यूमीज अपडेटिंग और ये सब किया जा सकता है। ओके, एनी अदर? Thank you so much. There's an anonymous attendee and he's asking how to remove hesitation during interview. Hesitation. See, there is no hard and fast rule, basically. People do get hesitated, many people. It is also depending on the interviewer, how he reacts with the interview. So hesitation is something which you have to work on yourself. Yani, as I said in an interview, try to do practice. Yani, you know, there are standard questions, there are standard this, which in an interview, go on YouTube, there are standard interviews that are done. Do mock interviews with your friends, with your, you know, somebody who you are good and close with. Try to do mock interviews. That will help you in your preparation. There is otherwise no ऐसा कोई ये नहीं है कि बेस लाइन के इस तरीके से हम अपना हेजिटेशन गोज विद टाइम। जैसा जैसा जितने आप इंटरव्यूज करोगे ज्यादा, उतना आपको ज्यादा एक्सपीरियंस होगा और जितना उतना आप ज्यादा कॉन्फिडेंटली फिर अपने आप को बोल सकोगे। अनलेस ये देखो, ये कब होता है अगर आप उसको पॉजिटिवली लेते हैं। कुछ लोग तो उसको नेगेटिवली लेते हैं, अरे सर मैं इतने इंटरव्यू के लिए गया, मैं कहीं पे भी हर टाइम पे फेल होता हूँ, मेरे को तो अभी इंटरव्यू पे जाने का दिल ही नहीं होता। अरे if you take it in a negative way, this will be the outcome. But if you take it in a positive way, कि नहीं sir, I will go and I will learn something. It will help me to, you know, better myself so that the next time I am, you know, better than what I am now.
So there is a difference in, the attitude of the person who is giving the interview. You have to keep a positive attitude. मेरा हमेशा यही कहना होता है, जितना आप पॉजिटिव रहोगे, जितना अपने आप को पॉजिटिव रखोगे, उतना आप जो है सक्सेसफुल रहोगे. So much. There's another question from Sonia Garia. If we don't know the answer that interviewer asked, so how we should manage this condition? Now, as I said, there are very many common questions that are there, which you have to, if you go through the net, you will find a lot of common questions which are there. But there are times when an interviewer can put a very different question altogether. If it is a personal question, then you can avoid it. You can simply, if he is asking you something very personal, that you can avoid. But if it is something general, or if it is something like, supposing you are staying in Kalyan and you have to come to Churchgate, and he asks you, how will you travel? And you do not know. So so the best answer would be, sir, I will try to find the best route possible. I will, don't say I don't know. Instead of saying I don't know, it is better that you try to say that I will try to find the best solution to this प्रॉब्लम दैट यू आर टेलिंग मी. यानी अगर उसने कोई ऐसे प्रॉब्लम दिखा दिया तुम्हारे को कि तुम कल्याण से चर्चगेट कैसे आओगे, दैट कुड बी वन ऑफ द क्वेश्चन, so obviously you may not know the answer, so then you have to say that you will try to find the best possible route and solution to get to that point, A to Z point. Thank you so much. Hello. There's another question from Akriti Patel. Good afternoon, sir. What really goes in an interviewer's mind while they interview? What do they want us to answer? How can someone know that? See, when you are being interviewed, please to understand, the interviewer has already seen your resume. He has seen your qualification. He understands what you have done. So he has read your resume. तो resume का part जो है already उसने देख चुका है, और उसके सामने जब आप बैठे भी हो तो आपकी resume कॉपी उसके पास है. तो जहां तक का तुम्हारा जो बेसिक जो इंफॉर्मेशन तुमने उसको दिया है वो ऑलरेडी उसके पास है. बाज वक्त लोग बोलते हैं सर, जैसे मैंने कहा कि व्हेन पीपल आस्क यू कुड यू टेल समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो वो शुरू हो जाते हैं, आई एम हर्षा पटेल, आई एम डन माय बीकॉम फ्रॉम बॉम्बे यूनिवर्सिटी वगैरह वगैरह. सो दिस इज द मोस्ट irrational answer. You can start off by saying I am Hassan Latifi and a graduate, as I've already mentioned in my resume. Then you can tell him that I've already mentioned in my resume, and what I would like to tell you is that I'm very passionate about gardening. What I like to do, I'm telling now that I have done my graduation from university, and at the same time I was doing work. I working in the office. I was doing part-time jobs. So this is the type of information which I want to hear. मैं ये जानना चाहता हूँ. Now जैसे उसने कहा कि इंटरव्यू के माइंड में क्या जा रहा है. इंटरव्यू सिर्फ ये देखना चाहता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल और आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, ये दो चीज वो पहले देखना चाहता है. अगर ये दो चीज आपने कॉन्फिडेंटली किए तो फिर दैट मीन्स ही इज इम्प्रेस्ड बाय यू. Thank you so much. Hello. So thank you, Mr. Hassan Latifi, for answering all the questions and conducting this session. So this was a very informative session for the students of HIPR and GISIPS College. I would like to thank on behalf of AMP to all the participants who have joined today, and best of luck for your future endeavors. I would also now request every candidate to please check the chat section. I have shared the link of the Telegram group which Professor Hassan Latifi was talking about. So you all can join and you can receive updates about any upcoming jobs.
and we keep on conducting such sessions. Kindly visit our website www.ampindia.org for further uh, uh, further information of similar sessions, similar job drives. We conduct job drives, job fairs all across India, so you all can benefit out of it. Thank you, everyone. Good day. Uh, Ehsan, I would like to just Hasan add sir, would one you thing like to for that. add? Yeah. Yeah, I would just like to add, dear job seekers, please try to understand that as AMP, we would like to see you succeed. But at the same time, don't expect everything from us. You also have to do your bit. Yani, unfortunately, yeah, when I post jobs also, I get a lot of people writing to me saying, "Sir, I need this job. This is my resume, and this and this." Well, we are posting jobs for you to look for jobs. We are not. We are not here to give you jobs. You have to do your bit. We can help you, guide you, and we can, show you the way. But we cannot do your work for you. If you're looking for a job, don't expect us to look for jobs for you. That is your work. You have to look for it. Don't put the burden on us just because we are helping you out. Try to be understanding. The jobs that is being posted is for you to look for it and search for it, not for us to look for you the job and give it to you. So that is one thing. And another thing is, those who will join now, please go back. I think in Telegram you can go back also. There is a lot of websites that I have posted regarding the same things that I talked about. Where you can check your resumes, where you can get references about job sites, where you can get information about how to talk about interviews, conduct interviews. All that guidance is there. And I will tell you, if you need help and guidance, I am always available on this to help you. But as I said again, to help you, not and guide you, but not to take on your burden. So please, as far as help and guidance is concerned, you're more than welcome. I don't mind helping you anytime, but don't put a burden on me so that I cannot bear it. Thank you very much. Jazakallah. Thank you very much. Thank you, everyone. Okay, Ehsan. I would now be reciting a short prayer, and then we'll end the session. Bismillahir Rahmanir Rahim. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم. Thank you, everyone. Have a good day.